तो हम लोग का डिस्कशन चल रहा है। तो चैप्टर 13 नेक्स्ट ऑफ डिवोशन, लास्ट पार्ट थोड़ा सा बचा था। हम लोग कल बिरला मंगल ठाकुर उनका बारे में सुने थे, कैसे वो भावो स्टेज में थे एंड चिंतामणि वुड बिकम, उनका जो है उनका गुरु बन गए, उनको शिक्षा दिए। सो तो Kumaraj immediately become devotee simply by smelling incense in the temple. Since in temple, Billamangal Thakur simply heard about Krishna and then immediately gave up his beautiful girl friend and started out for Mathura and Vrindavan, where he became a perfect Vaishnava. So these statements are not overestimation, nor are their stories; they are actual facts, but are the true for certain devotees and don't necessarily apply to all. These descriptions, even if considered overestimations, must be taken as they are in order to divert our attention from the fleeting material beauty to the eternal beauty of Krishna consciousness. And for a person who is already in contact with Krishna consciousness, the described results are not unusual. Some scholars argue that simply by following the principles of Varna and Ashram, one can gradually rise to the perfections reached by practicing devotional service, but this argument is not accepted by the great authorities. Lord Chaitanya also condemned the idea while he was talking with Ramananda Rai about the gradual development of devotional service. He rejected the idea of importance of Varnashrama Dharma when it was put forward by Ramananda Rai. He said that this advancement of Varna and Ashram is merely external. There is a higher principle. In Bhagavad Gita also the Lord says that one has to give up all other principles of elevation and take simply to the method of Krishna consciousness. That will help one in achieving the higher perfection of life. In 11th canto, 12th chapter, verse 9 of Srimad Bhagavatam, the Lord Himself says, one should execute the prescribed duties of Varna and Ashrama as long as one has not developed spontaneous attachment for hearing about my pastimes and activities. In other words, the prescribed forms of Varna and Ashrama are ritualistic ceremonies of religion intended for economic development, sense gratification, or salvation. All of these things are recommended for persons who have not developed Krishna consciousness. In fact, all such activities are recommended in the revealed scriptures only to bring one to the point of Krishna consciousness. But one who has already developed spontaneous attachment for Krishna does not require to execute the duties prescribed in the scriptures. तो यहाँ पे यह वर्ण आश्रम के बारे में बोला जा रहा है कि वर्ण आश्रम वर्ण आश्रम सिस्टम भगवान क्रिएट किए, लेकिन अल्टीमेटली इसका एम क्या है? अल्टीमेटली टू मेक वन सम पर्सन कृष्णा कॉन्शियस। इनिशियली लोग कर्मकांडी विधि में रहते हैं, देन कर्मकांड से एंड देन ग्रेजुअली वर्णाश्रम सिस्टम का थ्रो में जाएंगे, तो देन दे विल बिकम, ग्रेजुअली वो भक्ति में आ सकते हैं। तो भक्ति में आने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू वर्ण एंड आश्रम। क्यों? क्योंकि हमारा जो अटैचमेंट है, हमारा जिस नेचर है, उसी नेचर को सडनली चेंज करना मुश्किल होता है। इसीलिए सपोज समबडी इज क्षत्रिय गुण है, तो उसको सडनली वैष्णव बनाना बहुत मुश्किल होता है। शूद्र है, उसको वैष्णव बनाना मुश्किल है। तो इसलिए ग्रेजुअल डेवलपमेंट करना पड़ता है। इसलिए वो शूद्र लेवल से जो है, या क्षत्रिय है, वैश्य है, या ब्राह्मण है, वो सारे जिस लेवल में है उसी हिसाब से अपना रिकमेंडेड है प्रेस्क्राइब ड्यूटीज़ करना चाहिए। एंड ग्रेजुअली वो क्या करना चाहिए? वो प्रेस्क्राइब ड्यूटीज़ के माध्यम में कृष्ण का सेवा करना है, कृष्ण के बारे में सोचना है, कृष्ण का सेवा करना है। प्रेस्क्राइब ड्यूटीज करेंगे, पैरेलली हम कृष्ण का भी सेवा या चिंतन में रहेंगे। ग्रेजुअली जब कृष्ण कॉन्शियसनेस में फुल्ली आ जाएंगे, तो ये प्रेस्क्राइब ड्यूटी उसके लिए और ज़्यादा मायना नहीं रखता है। जैसे बोलते हैं कि कोई मंदिर में जो वैष्णव है, तो वैष्णव कभी भी ब्रह्मचारी का जैसे क्षत्रिय का कर्म भी कर सकता है, कभी शूद्र का भी कर सकता है, कभी ब्राह्मण का भी कर सकता है। तो वहाँ से वो बिकम वैष्णव, तो देन ये वर्णाश्रम सिस्टम का ऊपर में चला जाता है। तो उस टाइम ये वर्णाश्रम सिस्टम का उसके लिए महत्व नहीं रहता। लेकिन सोसाइटी में लोग सब कर्मकांडी में है, सब लोग भगवत विमुखी है, इसलिए उनको ग्रेजुअली कृष्ण कॉन्शियसनेस में लाने के लिए ये वर्णाश्रम सिस्टम का प्रचलन किया जाता है या होना चाहिए। तो इसीलिए ग्रेजुअली उसी स्टेज से ऊपर स्टेज को जाने के लिए ये प्रयत्न करने के लिए वर्णाश्रम सिस्टम का एक माध्यम है। वर्णाश्रम सिस्टम में रहते हुए वो
वो कृष्ण चेतना में फुल्ली आ सकता है। और जब कृष्ण चेतना फुल्ली में आ गया तो ये बनावटी सिस्टम का जरूरत उतना नहीं है, वो ऑटोमेटिकली बाह्य जैसे रह जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं है उसको वर्णाश्रम पालन करके कृष्ण को जोड़ने के लिए चेष्टा करना चाहिए। तो इसलिए वर्णाश्रम सिस्टम भगवान क्रिएट खुद ही किए। चतुर्वर्ण मोया सिस्टम गुण कर्म विभाग अकॉर्डिंग टू क्वालिटीज एंड अकॉर्डिंग टू कर्म का हिसाब से कोई ब्राह्मण का गुण क्या है और ब्राह्मण का कर्म क्या है उसी से करना पड़ेगा। सम दम तप शौच शांति आर्जवम, ये सब ब्राह्मणिकल क्वालिटीज है। तो और ब्राह्मण का धर्म कर्म क्या होता है? जजन जाजन पाठन पठन पाठन दान प्रतिग्रह। तो उसी हिसाब से जो करता है उसको ब्राह्मण बोलते हैं। तो अगर वो नहीं करता तो उसको ब्राह्मण नहीं कहते हैं, उसको ब्रह्म बंधु कहते हैं। तो क्षत्रिय को क्षत्रिय बंधु कहते हैं, वैश्य को वैश्य बंधु कहते हैं। तो इसलिए तीन कैटेगरी को द्विज कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय एंड वैश्य, तीनों को द्विज कहते हैं। द्विज मीन्स सेकेंड बार इनका जन्म होता है। जैसे पक्षी को द्विज कहते हैं क्योंकि पक्षी पहले एक अंडा देता है, उसका पहला जन्म हो बोलते हैं उसको, फिर अंडा से फिर जो बच्चा निकलता है सेकंड जन्म होता है। तो इसलिए इन लोग को दे कैन बी इनिशिएटेड एंड देन वन आफ्टर इनिशिएशन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो भी है इनिशिएशन का बाद में ये द्विज बन जाते हैं। सेकंड इनिशिएशन का बाद में ब्राह्मणिकल इनिशिएशन का बाद में पहले हरिनाम दीक्षा लेते हैं, देन बाद में ब्राह्मणिकल इनिशिएशन सेकंड इनिशिएशन होता है तो ब्राह्मण बन सकते हैं। तो रियल ब्राह्मण बनना चाहिए, उसके लिए ब्राह्मणिकल क्वालिटीज डेवलप करना चाहिए। तो इसलिए वर्णाश्रम सिस्टम में एक आदमी को ऊपर लेवल में कृष्ण चेतना कृष्ण भावनामृत में लाने के लिए ये वर्णाश्रम सिस्टम का यूज होता है। चैप्टर 14 सबका पास में किताब है? एवरीबॉडी इज हैविंग बुक्स? दिस टाइम एंड एनर्जी वन इज ट्राइंग टू डिवोट, उसको थोड़ा रेसिप्रोकेट करने से और भी इंस्पिरेशन मिलता है, इंस्पिरेशन आता है। हम लोग थोड़ा रेसिप्रोकेशन करना चाहिए। भक्ति इज इंडिपेंडेंट, ये जो दो छोटा छोटा पैराग्राफ का यही कहना का है। यहाँ पे प्रभुपाद ने बता रहे हैं भक्ति इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग, ये एक फॉर्मूला है, इसको याद रखना पड़ेगा। भक्ति किसी का ऊपर में डिपेंडेंट नहीं है, भक्ति इंडिपेंडेंट। तो इसलिए पहला पैराग्राफ में बोलते हैं कि भक्ति डिपेंडेंट ज्ञान एंड वैराग्य का ऊपर में डिपेंडेंट नहीं है। भक्ति हम लोग कितना बार भी डिस्कस किया था, भक्ति का दो बेटा है, ज्ञान एंड वैराग्य। भक्ति करने से ज्ञान वैराग्य आता है। हम सेपरेटली चेष्टा करेंगे वैराग्य नहीं आ रहा है, वैराग्य नहीं आ रहा है, मैं ट्राई कर रहा हूँ, मेरा क्या अटैचमेंट क्यों नहीं जा रहा है। तो हम लोग अगर रियली भक्ति करेंगे तो हमारा अटैचमेंट नहीं रहेगा, हम डिटैच मैटर से डिटैच हो जाएंगे। क्योंकि भक्ति करेंगे मतलब कृष्ण को अटैचमेंट है, कृष्ण को अटैचमेंट रहेगा हमारा तो माया से या मेटेरियल वर्ल्ड से भौतिक चीज से हमारा डिटैचमेंट होगा। तो इसीलिए भक्ति करना पहला पार्ट है। भक्ति करने से ज्ञान भी मिलता है। ज्ञान के क्या हो, तो इनिशियली प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि थोड़ा सा इनिशियली ज्ञान एंड वैराग्य थोड़ा रहेगा तो भक्ति में हेल्प कर सकता है, लेकिन एक्चुअली ज्ञान एंड वैराग्य उसका बेटा है। तो इसलिए ये बोल रहे हैं cultivation knowledge and renunciation which are favorable for achieving footing in Krishna consciousness may be accepted in the beginning, but ultimately they may also come to be rejected. For devotional service is dependent on nothing other than the sentiment or desire for such service. हम किसका पर डिपेंडेंट है? नहीं है, किसी का पर डिपेंड नहीं है, लेकिन भक्ति हमारा डिजायर का ऊपर में डिपेंड करता है, हम भक्ति करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो डिजायर और सेंटिमेंट्स ऑफ सच सर्विस, जो सेवा करने के लिए हमारा डिजायर होना चाहिए, ये इसका ग्रीड लोलियम उसका जो पेइंग कैपेबिलिटी है। इसीलिए इट रिक्वायर्स नथिंग मोर देन सिंसियरिटी। टोपात लिख दिए, हम लोग सिंसियर नहीं होगा भक्ति करने के लिए, हमारा सिंसियरिटी आएगा तो सारी चीज़ ऑटोमेटिकली आएगा। हमको ज्ञान आ जाएगा, वैराग्य आएगा, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ आएगा। लेकिन हमारा पास में पेइंग कैपेबिलिटी लोलियम या ग्रीड या सिंसियरिटी, हमारे पास में सिंसियरिटी कितना है वही हमको भक्ति में बढ़ाता है। तो हम लोग सिंसियरली प्रैक्टिस करेंगे, भक्ति करेंगे। भक्ति इज द कॉज एंड इफेक्ट ऑल्सो, मतलब इज द कॉज एंड इफेक्ट मीन्स कारण वही है, इफेक्ट रिजल्ट भी वही है, मतलब बिगिनिंग वही है, एंड यही है, माने मीन्स वही है, प्रोसेस वही है, एंड मीन्स रिजल्ट भी वही है। भक्ति इज द प्रोसेस
एंड भक्ति इज ऑल्सो अल्टीमेट, मतलब रिजल्ट। तो भक्ति का माध्यम से हम भगवान को भक्ति करते हैं, भक्ति का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इसीलिए कॉज एंड इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड भक्ति इज द कॉज, सिमिलरली चैंटिंग इज द एंड, चैंटिंग द मीन्स। चैंटिंग इज द मीन्स चैंटिंग का माध्यम में हम अच्छा चैंटिंग कर सकते हैं। हरे हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चैंटिंग करेंगे तो हम अच्छा से चैंटिंग कर सकते हैं। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समटाइम्स ये बोला जाता है कि एक्चुअली आवर चैंटिंग स्टार्ट्स आफ्टर 16 राउंड्स। हम लोग तो हैरान हो जाएंगे, एक्चुअली 16 राउंड्स की प्रिपरेशन फॉर चैंटिंग, तो उसका बाद में ही एक्चुअली हमारा चैंटिंग शुरू होना चाहिए। 16 राउंड्स का प्लस मिनिमम 16 राउंड्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर चैंटिंग, ऐसे बोल रहे हैं। तो आवर प्रिपरेशन हो गया 16 माला, तो हम लोग प्रिपरेटरी स्टेज में है, इसलिए हम टेस्ट ही नहीं आ रहा है। तो हम अगर चैंटिंग सिस्टम ठीक करेंगे तब देन हमको अच्छा और भी चैंटिंग करने के लिए मन करेगा, या हम रियल चैंटिंग उसका बाद में स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए चैंटिंग इज द एंड, चैंटिंग मीन्स डिवोशन इज द कॉज, डिवोशन इज द इफेक्ट। यहाँ का कहना का मतलब है ये, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट एक्चुअली। तो डिवोशनल सर्विस इज, दैट्स वाई भक्ति किसी का ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग। The only way of advancing in devotion's life is devotional service itself. भक्ति में बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? भक्ति ही करना पड़ेगा। चैंटिंग अच्छा करने के लिए करना पड़ेगा, बार बार चैंटिंग ही करना है। हम चैंटिंग का अपराध, नाम का अपराध हो जाता है तो क्या करना पड़ेगा? अधिक से अधिक से नाम करना पड़ेगा। मतलब बिगिनिंग हुई है, एंड हुई है, मिडिल भी हुई है, कॉज हुई है, इफेक्ट हुई है। तो इसलिए जैसे भगवान सेवक, भगवान भी है, सभ्य भगवान है, भगवान ही भगवान का सेवा करते हैं। कृष्ण का सेवा बलराम जी करते हैं, बलराम को नहीं, वो भी स्वयं भगवान है। इसी टाइप का ये भक्ति, भक्ति को बढ़ाता है। एंड भक्ति इज द कॉज ऑफ भक्ति, भक्ति इज द एंड ऑफ भक्ति। तो भक्ति भक्ति है, तो ये इम्पोर्टेंट है। मतलब ज़्यादा भक्ति करने के लिए हमको भक्ति ही करना पड़ेगा। तो भक्ति का प्रोसेस में रहना पड़ेगा, श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन, ये भक्ति का प्रोसेस है। इसको ज़्यादा ज़्यादा करेंगे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। This is confirmed in Bhagavad Gita, the Lord Himself, by the Lord Himself. One can understand me only through devotional service. Bhaktya Mam Abhijanati. In the beginning, His teachings of Gita, the Lord said to Arjun, because you are my devotee, I shall teach these secrets to you. आप मेरा भक्त है, इसलिए ये जो भगवद गीता आपको ही मैं बोलूँगा। तो मतलब यह भक्त होने से ही भगवद गीता समझ सकता है। Vedic knowledge means ultimately to understand the Supreme Lord, and the process of entering into His kingdom is devotional service, and the process of that is accepted by all authoritative scriptures. Mental speculators neglect the process of devotional service, and by simply trying to defeat others in philosophical research, they fail to develop the ecstasy of devotion. मेंटल स्पेकुलेशन, सो कॉल्ड ज्ञान के माध्यम में हम भक्ति कर नहीं कर सकते हैं। फिलोसफिकल स्पेकुलेशन रिसर्च करते हुए नहीं कर सकते हैं। 11th canto 12th chapter verse 31 of Srimad Bhagavatam, Krishna says, my dear Uddhav, for persons who are seriously engaged in my service, the cultivation of philosophical speculations and artificial enunciation are not very favorable. जो मेरा भक्ति में मेरा सेवा एंगेज होता है वो मेंटल स्पेकुलेशन एंड आर्टिफिशियल इनोसिएशन, ये इसको नहीं करना है। When a person becomes my devotee, he automatically attains the fruit of the renunciation of material enjoyment, and he gets sufficient knowledge to understand the absolute truth. वो जान सकता है मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, वो जानता है, और भगवान का प्रति उनका आसक्ति बढ़ता है, मैटर से डिटैच रहता है। That is the test of advancement in devotional service. The devotee cannot be in darkness because the Lord shows him special favor and enlightens him from within. पढ़ेंगे इन द एलिटीज austerities, the culture of philosophical knowledge, renunciation, the practice of mystic yoga, charity, and all similar auspicious activities are automatically achieved by my devotees. जो फ्रूटिव एक्टिविटीज कर्मकांड करते हैं, यज्ञ तपस्या, ऑस्टेरिटीज, स्पेकुलेशन, नॉलेज ज्ञान आहरण करते हैं, रिनाउंसिएशन, प्रैक्टिस ऑफ मिस्टिक योगा, मतलब
ज्ञान योग, ध्यान योग, ये सारे जो कर रहे हैं, ये भक्ति करने से ये सारे इसमें इंक्लूडेड हो जाता है, उसको प्राप्त होता है। The devotees here have everything at their disposal, but they desire nothing outside my devotion of my devotional service. If ever a devotee should desire some material profit, like promotion to heavenly planets or some spiritual profit, to go to Vaikuntha by my causeless mercy, his desires are very easily fulfilled. तो भगवान बोल रहे हैं, ये प्रभुपाद जी ने लिख दिया, माई कॉजलेस मर्सी, बाई माई कॉजलेस मर्सी, भगवान का कृपा से हिज डिजायर्स आर वेरी इजीली फुलफिल्ड। तो हम लोग जो डिजायर करते हैं, हमारा डिजायर फुलफिल जनरली होता है, नहीं होता है? आशुतोष प्रभु, जो डिजायर पे भगवान वही बोले कि वेरी इजीली फुलफिल्ड बाय माय कॉजलेस मर्सी, ही डिजायर्स आर वेरी इजीली। तो जिसका डिजायर फुलफिल नहीं हो रहा है तो कॉजलेस मर्सी भगवान का उसका ऊपर में नहीं है, ये एक पार्ट हो सकता है। हाँ नहीं, कॉजलेस मर्सी तो है, नहीं तो इतना कुछ होना नहीं होता, फिर भी इसको तो होना भी चाहिए, डिजर्व भी करना चाहिए, नहीं तो कैसे हो रहा है उसी से कॉजलेस मर्सी है, इसका मतलब। या हो सकता है कि भगवान नहीं चाहते हैं उसको प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उसको भक्ति में वो अवरोध होगा, इसलिए भगवान भक्त को ये चीज़ नहीं देता है, जो चीज़ भक्ति में उनको ऑब्स्ट्रक्शन होगा उसको नहीं देते हैं। फिर भी अगर जिद पकड़ लेते हैं हम लोग, फिर भगवान उसको बोल दे देते हैं। तो चैतन्य प्रभु इसलिए बोले, आमी विज्ञ तुमी मूर्ख, विषय केन माग, स्व चरणामृत दिया विषय भुलाइबो। तो भगवान इतना कृपालु है कि हम लोगों को कोई 20 को मांगेंगे वो देगा नहीं, तो जो जो हमारे लिए अच्छा है वो दे देते हैं। तो स्व चरणामृत दिया विषय भुलाइबो, तो विषय जी विषानल, तो इसलिए वो विषय मांगने से नहीं देते हैं। जिसको भक्ति, जो अच्छा भक्ति करता है तो उसको विषय का चीज़ नहीं देते हैं। लेकिन अगर आप सिंसियरली भक्ति करते हैं तो आपका जो डिजायर है, इसलिए बहुत जगह में बोला कि आप अगर 16 माला चैंटिंग ठीक से करते हैं तो जो भी आप डिजायर करते हो वो डिजायर फुलफिल होता है। ये बोला गया है कि आप एक युग मीन्स 12 साल तक अगर सत्य बोलेंगे तो आप जो भी बोलोगे उसका बाद में सब सत्य होगा। इसलिए पहले बोलते थे ब्राह्मण लोग का जो आशीर्वाद है काम करता है, या भक्त लोग का आशीर्वाद कामना दूसरा का पूर्ण हो जाता है। अगर कोई ब्राह्मण है अभिशाप देता है तो वो भी काम में आ जाता है। क्यों है? तो ये ब्राह्मणिकल क्वालिटीज, नॉट बिकॉज ऑफ सफल बार्थ इन ब्राह्मण फैमिली, बिकॉज देयर सत्य इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द ब्राह्मण। सत्य, शौच, ये सब पार्ट है ना, सम दम। तो इसको ये प्रैक्टिस करते हुए तो जो करता है तो उसको अगर सत्य बोलता है तो वो बोल देगा तो वो सत्य ही हो जाता है। और ब्राह्मण बोलता है तो हो जाता है, तो वैष्णव बोलने से क्यों नहीं होगा? ब्राह्मण का ऊपर में वैष्णव, इसलिए वैष्णव को खुशी करेंगे तो वैष्णव जो बोलेगा ये हमारा डिजायर वो सब फुलफिल हो जाएगा। तो इसलिए वैष्णव को प्रणाम करने से बोलते हैं, कृष्ण मतिरस्तु, सौभाग्यवान भव, यशस्वी भव, दीर्घायु भव, इसको आशीर्वाद देते हैं। तो ये जो आशीर्वाद देते हैं, ये आशीर्वाद का ऊपर अगर हमारा डाउट है तो वो काम नहीं करेगा, लेकिन वो डाउट नहीं है तो वो काम करेगा ही करेगा। भगवान का वार्ड का प्रति हमारा डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट होगा तो इफेक्ट कम हो जाएगा, या गुरुदेव का वार्ड का प्रति, तो हम लोग इमीडिएटली उसको फॉलो करना है विदाउट एनी डाउट, विदाउट ए डिले, विदाउट एनी डाउट। तो किसका डिजायर पूर्ण नहीं हुआ बताइए तो? Ever a devotee should desire some spiritual material profit, like promotion to heavenly planets or some spiritual profit to go to Vaikuntha, but both material and spiritual. By my causeless mercy, his desires are very easily fulfilled. So that means both material desire and both spiritual desire of a devotee are fulfilled by my causeless mercy, है ना? भगवान बोले हैं। यस सर। Krishna consciousness and still has some attachment to material enjoyment will soon be freed from such a tendency by regularly discharging devotional service
अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। तो लास्टली क्या होता है ना, वो भक्त जो है उसका मटेरियल डिजायर नहीं रहता है, शुरू में रहता है। शुरू में पूरा मटेरियल डिजायर रहेगा, भक्ति में आएगा, धीरे धीरे मटेरियल डिजायर कमेगा, स्पिरिचुअल डिजायर बढ़ेगा। तो कुछ दिन पैरेलली रहता है, धीरे धीरे मटेरियल डिजायर घटता जाता है, फिर उसके बाद स्पिरिचुअल डिजायर बढ़ता जाता है, लास्टली स्पिरिचुअल डिजायर ही रहता है, मटेरियल डिजायर रहता नहीं है। तो भगवान उस प्रोसेस का थ्रू में उसको लेके आगे बढ़ते हैं, लेके चलते हैं उसको। तो हर स्टेज में जो जो डिजायर है भगवान उसको फुलफिल करा के चलते हैं आगे आगे। लेकिन लास्ट को भक्त जानता है ये मैं बेकार क्यों मांगा, ये सब मटेरियल डिजायर, इसको मांगना नहीं चाहिए था, तो मैं गलत चीज मांग लिया। भगवान उसको भी शिक्षा देता है। वो गलत चीज मांगता है, दे देते हैं, फिर गलत चीज पाने के बाद में वो जानता है अरे ये क्यों मांगा। जैसे बोले टीचर हमारा दिल्ली का लड्डू, जो खाया वो पछता है, जो नहीं खाया वो भी पछता है। तो ये बोला अरे ये लड्डू, दिल्ली का लड्डू मेरे को चाहिए, तो भगवान दे ही देते हैं। उसके बाद में अरे ये किस टाइप का लड्डू है, इसे क्या बना है, इसे अच्छा नहीं है, ये क्यों मैं मांगा। हाँ, तो इसलिए वो पछताता है। तो इसलिए बाद में भी भक्त भी उस टाइप का जो शुद्ध भक्त नहीं हुआ है, तो वो तो मटेरियल उसका है, तो बाद में वो उसको भी फुलफिल मिल जाएगा, तो फिर उसको लेकर वो परेशान होता है, अरे मैं क्यों इसको बिल्कुल इसको मांगा ही क्यों मैंने, इसको मांगना नहीं चाहिए था। लेकिन वो गलती तो हमारा है, मांगना था हमको, हम मांग लिया, हमारा डिजायर हो गया, तो भगवान उसको पूर्ण कर देते हैं। उसके लिए भगवान थोड़ी रिस्पॉन्सिबल है। तो जो अच्छा काम होता है तो भगवान उसके लिए क्रेडिट लेते हैं, जो अच्छा नहीं है उसके लिए भगवान डिस्क्रेडिट हमको देते हैं। और किसी का डिजायर फुलफिल बाकी है? प्रभु दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु भगवान पाखे एतिकी इच्छा जे आटलिस्ट तांको चरण सब मन थाउ। It's the highest desire, it is spiritual desire. What is your desire? दंडवत प्रणाम सर। सर डिवोशन करने तो दरकार सर एसेंशियल हम 16 माला सर सेटा ही डिजायर सेटा कम फुलफिल होला पर ही सर हम जा करू सर। तो फुलफिल है नहीं, हो नहीं ना कौन हो जी सर, केबे केबे सर हेई परले सेटा कंटीन्यूअस हेले सर। तुम्हारा हुआ उस टाइप का माता जी का जो जॉब, वो डिजायर फुलफिल हो गया, उसका बाद में ट्रांसफर, तुम्हारा ट्रांसफर उधर जाना था वो भी हो गया। सर फिर बच्चा बच्ची जो होना है वो भी डिजायर फुलफिल हो गया। तो जो जो डिजायर कर रहे हो तो फुलफिल हो ही जा रहा है। सर अच्छा, तो ये डिजायर क्यों फुलफिल नहीं होगा, ये भी कर जाएंगे भगवान। हम जो डिजायर करते हैं मैक्सिमम देखिए सब डिजायर फुलफिल हो ही जाता है। एक आध चुक जाता है जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है जनरली, नहीं तो सारे डिजायर फुलफिल कर देता सर। आगे सर लोग इंटरनली चेक करें, देखिए सबका डिजायर भगवान पूर्ण किया नहीं किया, मैक्सिमम चीज तो पूर्ण हो गया हम लोग का, कोई कमियां नहीं है, भगवान सब कुछ पूर्ण करता है। लिखे इसलिए बोला ना, भाई माई कॉजलेस मच ही डिजायर्स आर वेरी इजीली फुलफिल्ड। आपका आप लोग जो डिजायर मिल जाता है तो बताते नहीं कि हम लोग ये डिजायर किया था, इसको फुलफिल हो गया। तो भगवान हमको तो मेरा तो सारा डिजायर 99.9% डिजायर फुलफिल कर दिया। हाँ, तो हम लोग उस टाइम भक्ति करे नहीं करे, कर दिया। हाँ, तो कैसे होगा, जो भी यह कर दिया कर देते हैं। उसके लिए भगवान को थैंक यू बोलना पड़ता है। हम लोग बोलते ही नहीं कि भगवान मेरा डिजायर फुलफिल कर दिया, तो हम लोग उसका रिकॉग्नाइज नहीं करते। तो चाहते वो मिलता है, मिल जाता नहीं मिलता है, उसी को तो मिलने का बाद में भी हम उसको थैंक्स नहीं बोलते हैं। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग द पॉइंट इज दैट हम रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं भगवान सारे डिजायर फुलफिल करता है, तो लेकिन हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं उसको, तो और ज़्यादा डिजायर करते रहते हैं, सब कुछ डिजायर फुलफिल होता है, उसका बाद में हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। हम लोग चाहे कि भाई यूपीएससी में जाना चाहिए तो यूपीएससी मिल गया, पहले इंजीनियरिंग पास करते हुए पहले जॉब मिलना चाहिए, नवरत्न कंपनी में जॉब मिल गया, एनटीपीसी जैसे, पढ़ाई ठीक से नहीं हुआ था फिर भी मिल गया। तो मैं तो जितना डिजायर छोटा सा जो भी डिजायर किया उसका फुलफिल भगवान कर दिया।
एंड वो भी हमारा कैपेबिलिटी नहीं था। तो हम लोग उसको पहले हम बोला था कि ठीक है, कोई गवर्नमेंट का छोटा सा नौकरी मिल जाएगा तो भी चलेगा। तो वो तो भगवान उससे भी ज़्यादा दे दिया। गवर्नमेंट का नौकरी मतलब हो सकता है कि क्लर्क का जॉब है, मैं सबसे बोलता हूँ, इसलिए मेरा कोई लाइफ का इस टाइप का एम कुछ प्रॉपरली एम नहीं था, या मैं कभी भी सोचा नहीं थी कि यूपीएससी क्या है, एग्जाम दूंगा, इस टाइप का बड़ा ग्रुप ए सर्विस में जाऊंगा, इस टाइप का मेरा डिजायर ही नहीं था। तो हम तो जो है गांव में रहते थे उस टाइम सोचते थे तो थोड़ा पास करके अच्छा से नौकरी कुछ मिल जाए, अच्छा मतलब नॉट स्पेसिफिकली हाई जॉब, बट ये था कि ठीक है कोई नौकरी मिल गया तो चल जाएगा। गवर्नमेंट उस टाइम तो प्राइवेट अच्छा नहीं था और नहीं भी था, तो हम लोग थोड़ा सा गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, जॉब सिक्योरिटी रहेगा तो हम लोग उसमें चला जाएगा, अच्छा है। तो इसलिए उसको भी भगवान ने वो पूर्ण कर दिया। पास करते करते मैं तो पहले +2 में भी इतना मार्क रहेगा पता नहीं था, बेस्ट टेन से थोड़ा सा 23 मार्क्स कम हो गया, दैट टू इंग्लिश में, वो भी थोड़ा सा किसी का हमारा कॉपी जाके दूसरा जगह में गिर गया, वहाँ पे लोग इंग्लिश मार्क नहीं दिए, नहीं तो मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा हुआ था। मेरा पिताजी इंग्लिश टीचर है, तो वो सारे हमको 4 ऐसे लिख दिए थे, वो 4 ऐसे में पूरा मगअप करके गया, उसी ऐसे से एक आ गया। मार्क तो कटता है ऐसे में, मेरा तो ग्रामर से कटता नहीं है। माई फादर वॉज इंग्लिश टीचर एंड ग्रामर बहुत स्ट्रांग है, तो इसलिए मेरा उस टाइम में अगर मैं 72 मार्क्स रहता इंग्लिश में तब तो मैं बेस्ट 10 पा जाता, लेकिन मेरा 49 या 47 रहा, 23 मार्क्स कम हो गया, उसी से हमको बेस्ट 10 से कम मिल गया। नहीं तो मेरे को वो पढ़ाई में नहीं किया था कुछ, इतना 10th में उतना पढ़ाई नहीं किया, लेकिन बेस्ट 10 का आसपास मार्क रह गया। बेस्ट कॉलेज इन द उड़ीसा में बेस्ट कॉलेज में हमको मिल गया। हॉस्टल भी प्रॉब्लम होता तो मैं वहाँ नहीं रह सकता था भुवनेश्वर में बीजेपी में, भगवान हॉस्टल भी व्यवस्था कर दिया, सब कुछ व्यवस्था कर दिया। उसका बाद में वहाँ से पास करते करते उसका बाद में 1 साल जॉब में चला गया, इसमें OUT में चला गया, वहाँ से फिर कुछ पढ़ाई अच्छे से नहीं किया, दे दिया इंजीनियरिंग में 69 रैंक आ गया। मेरे को पता ही नहीं था इतना कैसे अच्छा मार्क आ जाएगा, रंग रह गया, मतलब पढ़ाई नहीं किया ठीक से, मिल गया। पास करते करते तुरंत मैंने नवरत्न कंपनी में जॉब, अच्छा उसके बाद में इंडियन ऑयल में भी आ गया। अच्छा भाई मैं को यार मैं तो इतना पढ़ाई नहीं किया ठीक से, मैं तो ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया ठीक से, कोर्स भी कवर नहीं हुआ क्योंकि टीचर पढ़ाते नहीं थे, वो भी मिल गया। उसके बाद में फिर हम यूपीएससी दिया, नेक्स्ट ईयर दे दिया, इसी साल नेक्स्ट ईयर में रिटर्न में क्लियर हो गया, थर्ड टाइम में मिल गया। फिर सिविल सर्विस देता है, उसमें भी मेंस 3 बार दे दिया, फिर थर्ड में लास्ट में दे दिया, एग्जाम दिया यूपीएससी तो दिया, 17 रैंक आ गया। यार हम सोचा नहीं था ये था, मैं तो ऐसे ही दे दिया लास्ट एग्जाम 17 रैंक। मेरा फ्रेंड को बोला तुम जाके आओ मेरा क्या रिजल्ट निकला क्या है, वो मणिपुर में फ़ोन करके बोलता है अरे तुम्हारा 17 रैंक आ गया। अरे यार 17 रैंक मैं कौन है और 17 रैंक कौन है, तो ये दे दिया भगवान ने। तो भगवान क्या नहीं दिया, अरे भैया जो चाहे, अगर चाहिए डॉक्टर वाइफ चाहिए वो भी दे दिया, मतलब भगवान क्या नहीं दे दिया, सब तो दे दिया। हम लोग कभी रिकॉग्नाइज करते हैं भगवान जो दयालु है, हम जो चाहे वो दे देता है, मतलब हम 20 मांगेगा तो भी दे देगा, लेकिन देता नहीं है क्योंकि वो भक्त को थोड़ा सा चाहता है कि ये गलत काम नहीं करे। तो लेकिन हम लोग कभी एनालिसिस किया जिंदगी में कि जो भगवान यहाँ पे लिखा ये क्या भगवान का वर्ड गलत है क्या? बाई माई मैं इसलिए सोच रहा हूँ जिसका डिजायर पूरा नहीं हुआ वो सिंसियरली डिजायर नहीं करता है। ये बाई माई कॉन्शियस मर्सी हिज डिजायर्स आर वेरी इजीली फुलफिल्ड, ये वर्ड का वैल्यू इसलिए मैं बार बार इसको पढ़ रहा हूँ। भाई जो भी इंटरनली आप सोचिए कौन सा नहीं है, मैं जिसका बारे में जानता हूँ सारे डिजायर जानता हूँ, श्रीकांत का सारे डिजायर फुलफिल हुआ है 90% 99%, इसलिए बोला। ऐसे कौन है आपका वाइफ का, वो बोला वो मैं जॉब करूंगा, मैं जॉब ढूंढूंगा, वाइफ जैसे जॉब करना चाहिए, मिल गया। उसका बाद में उसका गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल में पढ़ाती थी, कोई प्राइवेट स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, फिर कहीं पे 1 साल के लिए मिल गया ये भी में। फिर उसका बाद में गवर्नमेंट 500 आदमी अप्लाई किए थे, 500 लोग से 510 लोग अप्लाई किए थे, 10 आदमी को उसका इंटरव्यू के लिए बुलाया था, 10 में एक ही नौकरी एक ही पोस्ट था, एक ही आदमी को मिल गया, ही से श्रीकांत जी का वाइफ है, नहीं मिला क्या श्रीकांत? उसके बाद बोला चाहूंगा, ये वरीड हो रहा था मैं इसी मेरा वाइफ का जॉब ज्वाइन होगा तभी मेरा ट्रांसफर होकर वहीं जाना चाहिए। हम लोग बोला ठीक है टाइमली मिल जाएगा डोंट वरी, लेकिन उसको डाउट था किसी किसी को मेरे को ट्रांसफर होगा क्या। तो हम लोग जाके उसी दिन उसका टाइमली जाके बिफोर टाइम जाके ईडी का पास में जाके अप्रूवल करा कर लाया। अब मैं टाइप किया उस दिन, मतलब बिकॉज दैट डे दी P&A वाले जो बदमाश लोग नहीं था, मेरा जो सपोर्टिव वाला था, मैं जाकर उसको बोला ये टाइप करो, मैं जो
इसका ट्रांसफर इस टाइप का होगा, इंक्लूडिंग यहाँ पे हमारा नीचे में बैठा हुआ है, तो उसका भी ट्रांसफर हुआ। ऑर्डर हम निकाल के उसी दिन लेके लाया था और आत्मा हाथ में रखा था, जॉब चाहिए, जॉब आप रिलीव डेट बताओ उसी दिन रिलीव होगा। तो आप जिस दिन बताए उसी दिन हम लोग रिलीव किया। तो आपके लिए पोस्ट बहुत पहले से 2 महीना 3 महीना पहले से पोस्ट खाली पड़ा था, रखा गया था। भगवान किया था नहीं किया था। आज्ञा सर। लेकिन एक चीज आप और माता जी बोल के गए, उसको थोड़ा सा सीरियसली नहीं कर रहे हो। क्या कह रहे, तो इस पे आपको याद है ना, हमारे प्रभु का पास में बोल के गए थे। सर तो वो हाँ, वो कल आप नहीं ज्वाइन किया था, उसी का डिस्कस हो रहा था, आपका नाम जिक्र नहीं किया था मैंने। वही क्या था, हम लोग बोल देते हैं उसका भूल जाते हैं। भगवान सब पूर्ण करता है, हमको सिंसियरली अटेम्प्ट करना पड़ेगा। 16 माला क्या, अभी आप चाहोगे 32 माला ही कर लोगे। आप छुट्टी है क्या करोगे अभी, आप 32 माला कर लोगे। बच्चे को पकड़ो, एक हाथ में दूसरे हाथ में जप माला ले लो, तो 2 काम पराली होता है। हम लोग भी बच्चे को पकड़ते थे तो उधर में एक हाथ में बच्चा पकड़ते थे और फोटो है अभी, और दूसरे हाथ में माला होता था। ठीक है, ध्यान होता है, माला में नहीं होता है, ट्राई करो ध्यान में। मेरा भी नहीं हो रहा है, लेकिन माला तो करो, 16 माला। लेकिन आप डिजायर फुलफिल नहीं करते हो। भगवान जो कमिटमेंट हम भगवान को दिया या जो भी किया उसको नहीं करते हैं। और भगवान सारी चीज को करता है। भगवान कौन सा नहीं किया बताओ, किसका नहीं किया। 99.9%, एटलीस्ट 95% भगवान सब डिजायर फुलफिल करता है। तो हमारा वही तो हमारा हिम्मत नहीं बोलने के लिए कि मेरा ओपन हार्ट नहीं करते हैं। हमारा सारे डिजायर भगवान फुलफिल नहीं किया। किसका डिजायर भगवान फुलफिल नहीं किया बताओ। उसके लिए हमको सिंसियरली ट्राई करना है, डिजायर करना है, डिजर्व करना है। भगवान थोड़ा सा करेंगे तो उसका डबल दे देते हैं। भगवान देते हैं, छप्पर फाड़ के देते हैं, कम नहीं देते हैं। हम लोग का किसी का पोजीशन था, अभी सब कोई बोल सकता है मैं क्या प्राप्त होने के लिए मेरा कैपेबिलिटी है। देखिए हमारा जितना फ्रेंड्स है वो किस पोजीशन में है, सारे क्या ऊपर में है। मैक्सिमम लोग हमसे डाउन में है, मेटेरियली हो या अदरवाइज ऑल्सो। तो लेकिन हम लोग डिजायर ठीक से नहीं करते हैं या डिजर्व नहीं करते हैं, और थोड़ा सा भी कर दिया तो भगवान उसको देता है। किसको नहीं दिया भगवान, किसको नहीं दिया, आइए बताइए क्या नहीं दिया है। इसीलिए ग्रैटिट्यूड हमारा भगवान के लिए कब आएगा। हम तक भगवान के लिए हम लोग एक्सप्रेस ही नहीं करते, भगवान मेरा सब डिजायर फुलफिल कर दिया, अंदर में रखते हैं हम लोग। क्या हम तो देखा है, जिसका पर्सनल लाइफ में हम देखा है, अगर किससे मिला, जैसे श्रीकांत से जितना दिन मिला, मैं बोल दिया उसके बारे में हिस्ट्री, तो फुलफिल सारे कर दिया है। सारे लोग का ट्रांसफर हुआ, तुम्हारा ट्रांसफर नहीं हुआ, वहाँ पे है ना नहीं लास्ट ईयर। तो क्या है, क्योंकि तुम्हारा वहाँ पे रहना जरूरी है, तुम्हारा वाइफ है, इसीलिए ट्रांसफर नहीं हुआ। अरे भाई मैं जो बोल रहा हूँ फैक्ट ही बोल रहा हूँ ना, इसमें कोई कमियां है क्या है? कौन सा डिजायर फुलफिल नहीं किया भगवान ने, आप बताओ। हम भगवान के लिए कृतज्ञता ज्ञापन नहीं करते। भगवान हमको जितना मिलना चाहिए ना, भगवान उससे काफी ज्यादा दे दिया। आपका नौकरी नहीं हो रहा था, आप उसी दिन भाग रहे तो कहाँ पे गुजरात जाने वाला था, उसी दिन भगवान आपको बुलाया, फिर नौकरी दे दिया, नहीं दिया क्या सर? आगे तो क्या कौन बोलेगा इसको, हम बोलेंगे। हम एक एक आदमी को पूछ रहे हैं, इसका मतलब प्रैक्टिकल रियलाइजेशन बोलना चाहिए। हम कोई नहीं बोलते हैं, चुप रहते हैं, मतलब भगवान कुछ नहीं किया क्या। अरे हर चीज को देखो, भगवान क्या नहीं किया, हमारा क्या कैपेबिलिटी है, हम क्या पोजीशन में है, और हमारा जो डिजायर है वो क्या है, और उसके बाद में भगवान क्या क्या पूर्ण नहीं किया। यार आप लोग सब बताइए। इसी को बोलते हैं ओपनिंग द हार्ट, एंड इसी को बोलते हैं भगवान को कृतज्ञता ज्ञापन करना है। भगवान को भी कभी खुशी होता है, अरे भाई मेरा तो पोजीशन कुछ भी नहीं था, प्रभु हमको ये दे दिया। कभी हम बताएं किसी को प्रभु क्या नहीं दिया, हमारा क्या रहेगा। अभी प्रभु के लिए हमारा क्या इस टाइप का फीलिंग्स आएगा, कब आएगा फिर, कुछ तो फिनिश नहीं आता है, मेरा तो नहीं आता है। फिर भी हम लोग ये कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहिए। प्रभु जो चाहा वो प्रभु कृपा करके सब फुलफिल कर दिया, 99.9% फुलफिल कर दिया। तो हम लोग कभी सोचा है तो जॉब चाहिए उसको, इसीलिए हम एनालिसिस नहीं करते हैं। हम नहीं चाहते हैं एनालिसिस करने के लिए, जो इजीली मिल जाता है उसको हम वैल्यू नहीं देते हैं। तो प्रभु ने सारे चीज को हमारा कैपेबिलिटी का बियॉन्ड दे दिया। मैं तो नहीं जानता हूँ कि भाई किसी का कैपेबिलिटी है या वो उसका कैपेबिलिटी इन द सेंस दैट वो ठीक से ट्राई नहीं किया, जितना ट्राई किया उससे ज्यादा दे दिया। तो श्रीकांत बोलो आपको क्या नहीं मिला या क्या मिला बताओ। डिजायर फुलफिल हो सर, केवल डिवोशनल सर्विस जो डिजायर था सेटा सर फुलफिल निजे करि पारनी सर। आ नले मैटेरियल डिजायर
99% सर फुलफिल है इसकी। तो इसीलिए हम लोग ये डिजायर को स्ट्रांगली करना है और चेष्टा करने से हो जाएगा। ये तो इजी है। तो स्पिरिचुअल मेटेरियल चीज को डिफिकल्ट होता है, स्पिरिचुअल चीज इजी है। हम लोग उसको इजीली कर सकते, उसके लिए कोई कष्ट नहीं करना पड़ता है। बाइक चढ़ के 50-60 किलोमीटर नहीं जाना पड़ता है, बैठ के जॉब करना पड़ता है। कोई चीज इजियर, यू टेल मी, जॉब करना इजियर है या मैंने 70-80 किलोमीटर 100 किलोमीटर बाइक में जाना इजी है? सर बैठ के जॉब करना तो इजी है सर। तो फिर हम लोग नहीं करते हैं इजी चीज को। भगवान कष्ट तो नहीं दिया, भगवान इजी दे दिया करने के लिए, फिर भी हम नहीं करते, तो इसके लिए भगवान दायी है क्या? नहीं सर। इतना पढ़ाई करने के लिए 10 घंटा 8 घंटा डिफिकल्ट होता है, बट हम लोग कुछ इसमें दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है। लेकिन जॉब में क्या दिमाग लगाना पड़ता है? कुछ नहीं है, नहीं है? अभी श्रवण करने के लिए क्या कष्ट है? हम लोग कोई इतना कष्ट करके बताता है, हम लोग खाली सुनते हैं, उसमें भी कष्ट है? कुछ कष्ट है नहीं। तो हर चीज तो भगवान ने अपना तरफ से कष्ट ले लिया और हमको तो सुविधा दे दिया, तो हम लोग उसको नहीं करते हैं। जो कष्ट काम उसको कर लेते हैं, जो कष्ट नहीं उसको नहीं करते हैं। उसके लिए कौन दायी है? भगवान दायी है थोड़ी है। हो सकता है मेरे लिए डिफिकल्ट है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, दैट इज समथिंग डिफरेंट, बट ये डिफिकल्ट है ही नहीं, ये सिंपल चीज है। उसको हम नहीं करते हैं, करना नहीं चाहते हैं, इसीलिए नहीं होता है। तो ये जब से हम समझ जाएगा ये बात को, तब से कर सकता है। इसीलिए भगवान बुद्धि दिया, कैसे पैरालिस को यूज करो, इसको यूज करके आसानी से भक्ति करो, मुझको दिया है। आशुतोष प्रभु, हरे कृष्णा। हम चाहते हैं अच्छा चीज पूर्ण करने के लिए, रेदर वी डोंट वांट टू, हमारा डिजायर उसका अगेंस्ट में जाता है, हमारा डिजायर उसके अगेंस्ट में जाता है। भगवान इजी करना चाहता है, हम उसको डिफिकल्ट करना चाहते हैं। ये नॉट, हाँ बताइए। हाँ ठीक है। वही तो मैंने जो मैं देखता हूँ तो ये अभी जो बात हो रहा था, कल जो आपके साथ बात हो रहा था, हमारे पर्सनली बात हो रहा था, तो एक्चुअली क्या होता है कि जो मैं जो एक्चुअली जो अच्छा चीज है उसको पूर्ण करने के लिए भगवान तो बहुत ही हेल्प करते हैं, लेकिन हम थोड़ा जिद्दी हो जाते हैं और उसके प्रति ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए हमारा वो इच्छा नहीं पूर्ण नहीं होता है। जैसे कि मैंने पहले एक कविता पढ़ा था, बाल बुद्ध, एक कविता था, हमारे क्लास 6 या 7 में था। हिंसा बादर राज्य मोहित तो हेबी नहीं नरपति, मुँह का नूतन राज्य गढ़ी भी मोहिर तुलती। वो जो ऐसे एक कविता लिखा था, तो ये जो बात कही थी कि वो चाहते थे कि एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो उनका थोड़ा ये होगा, उसका ये जो लिखा है कविता, वो वही इसमें मैं थोड़ा प्रभावित था उस समय जब मैंने थोड़ा बड़ा हुआ, तो उसका जब अर्थ हमें समझ में आया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया था कि जो मेरे माताजी ने पढ़ा ध्रुव ध्रुव जी के बारे में और प्रहलाद जी के बारे में बताते थे, तो उस समय भी मेरे मन में थोड़ा-थोड़ा आता था, लेकिन हम इतना नहीं बन पाए क्योंकि हम इसके लिए ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसके लिए हमारा डिज़ायर स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसीलिए हम नहीं बन पाते हैं इतना। तो हम तो ध्रुव जैसे नहीं बन पाएँगे या प्रहलाद जी जैसे नहीं बन पाएँगे, फिर भी थोड़ा तो कुछ कर पाते हैं, तो थोड़ा एडवांस हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ जो एक्चुअली हम इसको ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं, इच्छा डिज़ायर नहीं कर, स्ट्रांग डिज़ायर नहीं है, इसलिए तो नहीं हो पा रहा है। डिज़ायर भी स्ट्रांग होना चाहिए और माने जो एफर्ट भी, उसको थोड़ा एफर्ट भी देना चाहिए, क्योंकि बिना एफर्ट से कुछ काम नहीं होता है। उद्यमन सिद्धंत कार्याणि न मनोरथै नहि सप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुख्यमया। ये जो बात है ये तो सही है, इसको करना चाहिए। तो उद्यम भी चाहिए और एंडिवर, परसिवरेंस एंड ये दोनों चाहिए, डिज़ायर वो दोनों चाहिए। तो फिर भगवान इसको सैंक्शन ज़रूर ही करेंगे, करते हैं तो। ये तो करते हैं। बहुत कुछ एक्चुअली बहुत कुछ भी भगवान दिया है। जैसे मैंने चाहा था बहुत कुछ ही दिया है एक्चुअली, बहुत कुछ ही दिया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, दिए हैं बहुत कुछ। फिर भी हम जो इसके बारे में हमारे जो पहले से जो मन में था, उसके बारे में हम स्ट्रॉन्ग नहीं हुए, इसके डिज़ायर हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए हम उस लेवल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। ये तो सही बात है। भगवान जिसका स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, जिसका एफर्ट स्ट्रॉन्ग होता है, सिंसियर होता है, तो भगवान उसको ज़रूर पूरा करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे थैंक कृष्णा। यू। तो इसलिए इम्पॉसिबल भगवान के पास में कुछ है ही नहीं, और भक्त कभी भी इम्पॉसिबल नहीं बोलना चाहिए, नो नो नहीं कहना चाहिए। तो हमारा अम्मे प्रभु ने उस दिन भी बोला, कह रहे भाई नो क्या है? एक प्रोग्राम बंद हो रहा था, बंद हो गया था,
अभी बुर्ला में इंजीनियरिंग कॉलेज में, फिर हो गया, इसमें क्या नो क्या है। तो भगवान तो करना चाहते हैं हम लोग। एक रास्ता बंद हो तो दूसरा रास्ता खोला, दूसरा रास्ता बंद है तीसरा रास्ता खुल जाएगा। तो नो क्या है, ऐसे नो कुछ नहीं है। तो हम लोग उसको थोड़ा सा रास्ता देखना पड़ेगा, कहाँ खोज रहा है, गाइडेंस लेने से मिल जाएगा। तो हम लोग सवेरे से शाम तक जो डिजायर करते हैं वो तो एक एक डिजायर बोला नहीं, हम तो कितना डिजायर करते हैं, सारे डिजायर हमको आज ये खाना है तो वो मिल जाता है। कुकिंग होता है भगवान कैसे मिल जाता है। तो हम लोग क्या क्या जो भी डिजायर करते हैं वो फुलफिल करते हैं, भगवान ने डेली फुलफिल कर रहे हैं, हर मोमेंट में फुलफिल करते हैं, नहीं करते हैं। श्याम कृष्ण प्रभु। सुतापा प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सर, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। तो हम लोग जो डिजायर के बारे में आपने बोले, हम लोग जो चाहते हैं वो मिल जाते हैं। बाय द वे हम भी दिख रहे हैं, हमारा भी जो दोस्त लोग है, हमारा कंटेम्प्रेरी जो है वो भी कितना भी माने डाउन पोजीशन में है। हम लोग भी जो भी मिला है बहुत अच्छा है। तो फिर भी हम लोग को जो डिजायर करना है वो कैसे एक्चुअली दूसरा का मंगल में होना चाहिए, वो थोड़ा हम लोग ध्यान देना चाहिए। क्योंकि टू डिजायर फॉर द गुड ऑफ अदर्स इज द मदर ऑफ वंस ओन गुड। हम लोग जो चाहते हैं जे ये मटेरियल चीज मेरे को मिल गया मैं बहुत खुश हूँ, वो खुश का बात नहीं, वो और दुख का बात। क्योंकि वो दुख वाला है ना, हर टाइम मिजरी इधर है और है, इसलिए हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे जो जो फोर टाइप का जो नवागत भक्त है, एक जो आर्त है, आर्त जो माने दुख में पढ़कर वो क्या भगवान को स्मरण करता है, आर्त है। और जो एक अर्थार्थी है, जो कुछ पाने के लिए भगवान को प्रेयर कर रहे हैं, मेरे को कुछ मिल जाना चाहिए, तो वो भगवान को प्रेयर कर रहा है। और एक जो जो जिज्ञासु कैटेगरी है, वो जिज्ञासु क्या, वो कुछ जानने के लिए हर टाइम में क्या भगवान को माने वो विलिंग माने इच्छा प्रकट किए, वो जो जिज्ञासु। और एक ज्ञानी है जो भगवान का तत्व सब पता है, वो ज्ञानी है। जो चार कैटेगरी का जो जो नवागत भक्त है, तो इसमें हम लोग जब दुख आता है हम लोग प्रेयर करे मेरे को ये कर दीजिएगा, जब हो जाता है हम लोग एस्केप हो कर रहे हैं ये चीज। कि जब हम लोग मातृगर्भ में थे, हर टाइम हम इतना टेंशन में थे, जैसे आप बोले थे ना 10,000 जो स्कॉर्पियो जैसे बिछा कामुड़ले जेमती से भाया जंत्रणा थिला। आमे चाहूथिलु सेतरु केमति मुक्त हेबाकु, मु आसिले मो प्रभु को पूरा डाकिबी। किंतु जेतेबेले बाहरी आसिले तापरे आमे कोन कले आस्ते आस्ते आमे एटा भूलिବାକୁ लागिले। तेणु एटा होछु माने नेचुरल टेंडेंसी। तेणु भगवान परीक्षा करती एक्चुअली ये कौन करुछ। तेणु आमे कोउटा भलो कोउटा मंद, तेणु आमे तो माने आमे निर्बोध शिशु, आमे ठीक से जानिनु। तेणु हमको एथिरे आमे केमिति केमिति एथिरे माने जो कंटिन्यूटा जो मेंटेन करिवा, जोटा माने शुद्ध भक्त जे एक्चुअली जो जिनिस जानिचंती सेइथि पई माने जने शुद्ध भक्त को किछि कहले मोटर मिल गया, से माने हसी दियंती एंती है ना। से जानिचंती आमे निर्बोध कि जान नुहे, रियलिटी के जानिबो ना। जे सबले माने जे सबले सत्य कथा कहंती, निजर कर्तव्य प्रति सबले माने सचेतन थांती, सचोट थांती, आउ जहा करंती माने इमीडिएट माने जने कहला बेल भक्त से सीरियस। मु जहा भी देखि सारंग पाखरे माने मो कथा एक्चुअली मु दीर्घ दिन धरे अटैच नुह, किंतु मु जति दिन भी जानी सारंग गोटे इमीडिएट कहला पर एते बिजी शेड्यूल भितरे से पूरा एकदम माने फटाफट रेस्पॉन्स माने
एते स्पीड जोटा कि आमर किए कहले आम सीटा एते भी करें बहुत बिजी आम तो ये छोटिया एते बिजी आउ सार तो केते बहुत बिजी तेणुक सी माने कर्तव्य प्रति सब सचोट रही था आउ सबु टाइम जो यही जिनसा मत कहती मुझे देखिली से प्राक्टिकली रिलेसन पर भी मुझे रियलाइज अनुभव करूँ माने सब भगवान को भरोसा रख माने जी भक्त से सब भगवान कृष्ण पर संपूर्ण भरोसा रखती निर्भर करती से सबू माने विपदरा सब माने कौन टली जाए आ गए मुझे देखुची एक्चुअली माने लोक किसी बुझी पारु ना माने सी खाली मेडिकल रे बेसी पैसा खर्च कर